A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new chapter of Business Studies, class 12th, the chapter number 10, Financial Market. You know very well uh, some of the important points related to this chapter we already discussed in the few previous videos. Financial market is a market for creation and exchange of financial assets. It means financial market includes the three important process. The first one is a creation of financial assets, number two exchange of assets, and number third is a financial assets. You know very well the various important function of the financial market, as well as they are basically two types of the financial market. The first one is a money market. Money market is a market for short-term funds which deals in monetary assets whose period of maturity is up to 1 year. There are various instruments available in the money market like treasury bill, commercial paper, call money, certificate of deposits, commercial bill. And the second types of the financial market is a capital market. Capital market is a market for medium and long-term funds. This market facilitates the institutional arrangements through which long-term funds, both debt and equity, are raised and invested. The capital market consists of development banks, commercial banks, and a stock exchange. An ideal capital market is one where the finance is available at a reasonable cost. The process of economic development is facilitated by the existence of a well-functioning capital market. There are basically two types of the capital market. The first one is a primary market and second one is a secondary market. What is a primary market? Primary market is also known as the new issue market, as this market deals with a new security issued for the first time. In this market, company issues security directly to the investor for the purpose of establishing new business or for modernizing and expanding the existing business. The primary market facilitates capital formation in the economy by channelizing public saving into productive investment. So what is a primary market? If we are talking about the primary market in detail, we find that प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां हम किसी भी शेयर्स को फर्स्ट टाइम या न्यूली इशू करते। ओके, जनरली जब कंपनी न्यू इस्टेब्लिश होती है तो कैपिटल अरेंजमेंट के लिए प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर्स को इशू करती है और शेयर को इशू करने के साथ साथ अपने बिजनेस के लिए फंड अरेंज करती है। यानी अगर हम बेसिकली बात करें तो प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे कंपनीज अपने नए बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए या फिर एग्जिस्टिंग बिजनेस को मॉडर्नाइज करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए सिक्योरिटीज़ को इशू करके फंड रेज करती है। द मेन इंपॉर्टेंट एम ऑफ द प्राइमरी मार्केट टू फैसिलिटेट कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर्स में यानी पब्लिक के पास जो सेविंग्स हैं उनको प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में क्रिएट करना प्राइमरी मार्केट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सो देयर वेरियस मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ द न्यू इशू इन प्राइमरी मार्केट। अगर इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी को इशू करने के कई तरीके हैं, कई तरह के फ्लोटेशन मेथड्स हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दे आर बेसिकली वेरियस मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू इन प्राइमरी मार्केट। जैसा हम जानते हैं कि प्राइमरी मार्केट में कोई भी कंपनी न्यू शेयर को इशू करती है एज वेल एज फ्रेश शेयर को इशू करती है, या न्यू कंपनीज होती है जिसके पास मान लीजिए 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10,000 प्रेफरेंस शेयर है, उसने ऑलरेडी 8,000 शेयर्स इशू कर लिए हैं, 2,000 शेयर उसे और इशू करना है मार्केट में, तो वो प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम इशू है। यानी कोई भी शेयर जो फर्स्ट टाइम मार्केट में इशू होता है, फर्स्ट टाइम उसका यूज़ किया जाता है फॉर द कैपिटल अरेंजमेंट के लिए, तो उसको हम लोग पहले प्राइमरी मार्केट में इशू करते हैं। So there are various method of flotation of new issue in the primary market. Let me discuss it. So the number one is offer through prospectus, that is a IPO. IPO means initial public offer. What is the full form of the IPO? The initial public offer. Under this method, a company invites public to subscribe for its share through issue of prospectus.
which makes a direct appeal to investor to invest in the company through an advertisement in the newspaper and magazine. यानी जनरली इस मेथड में कंपनी करती क्या है, पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करती है। इन क्लास 11th यू आर ऑलरेडी learn about the prospectus. They are basically three important documents prepared by the company. There's a memorandum of association, article of association and prospectus. So prospectus एक तरह का कह सकते हैं ना, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है किसी भी शेयर को इशू करने के लिए, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को बताई जाती है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, शेयर्स का क्या नेचर है, शेयर से अगर रिलेटेड कोई लॉक इन पीरियड है तो उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन होती है, एज वेल एज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द राइट्स रिलेटेड टू द शेयर्स। अगर आप वो शेयर्स को खरीदते हैं तो आपको क्या राइट्स मिलते हैं, उसका रिडम्पशन पीरियड कितना है, यानी डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द शेयर्स और सिक्योरिटी, एज वेल एज द डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द कंपनी के बारे में भी डिटेल डिस्क्रिप्शन गिवन होता है। और कंपनी जनरली अपने प्रोस्पेक्टस में ये भी डिस्क्लोज करती है कि वो जो फंड आपसे अरेंज करेगी उस पैसे को किस तरह से वो यूज़ करेगी, ताकि आप इन्वेस्टर्स का उस कंपनी के ऊपर जो रिलायबिलिटी है, जो ट्रस्ट है, वो और अच्छे से बिल्टअप हो। सो कंपनी क्या करती है, बेसिकली मार्केट में पब्लिक को अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है, अपनी कंपनीज़ के बारे में बताती है, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताती है और उनसे डायरेक्ट अपील करती है कि वो उन कंपनी में इन्वेस्ट करें। ओके, जनरली ये प्रोस्पेक्टस जो होते हैं वो मैगजीन के थ्रू और न्यूज़पेपर के थ्रू पब्लिक तक पहुंचते हैं। द कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड सेबी गाइडलाइन। नंबर पहली बात कि जो प्रोस्पेक्टस में कंटेंट है वो कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न और सेबी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कंपनीज एक्ट यू नो वेरी वेल, द न्यू कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेबी गाइडलाइन मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यू नो वेरी वेल कि हमारे जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, स्पेशली फॉर द कैपिटल मार्केट में, उसको पूरा रेगुलेट करने की जिम्मेदारी हमारे सेबी के लिए होती है। सेबी का मेन एम होता है कस्टमर या इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए काम करना, कि हम कहीं इन्वेस्टर्स के पैसे को मिसयूज़ न करें, उनको टाइमली इंटरेस्ट पे करें, टाइमली डिविडेंड पे करें, टाइमली उनका रिडम्पशन करें। ये सारी चीज़ों के लिए सेबी को एस्टैब्लिश किया गया है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, द इशू मस्ट बी लिस्टेड ऑन एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज, यानी जो आप शेयर इशू करेंगे वो शेयर कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए। नंबर थर्ड, द इशू में बी अंडर राइटिंग टू सेव द कंपनी फ्रॉम द अंडर सब्सक्रिप्शन। यू नो, ये आप लोग अपने अकाउंटेंसी के अकाउंटिंग फॉर कंपनी सेक्शन में पढ़ोगे। The under subscription it is called, according to Companies Act there should be a 90% minimum subscription। यानी अगर कंपनी 10,000 का शेयर मार्केट में इशू कर रही है थ्रू IPOs इन द प्राइमरी मार्केट, सो उसे कम से कम 9,000 शेयर सेल हो जानी चाहिए, यानी 9,000 के पैसे उसे मिल जाने चाहिए विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। अगर कंपनी 90% शेयर अपने सेल नहीं कर पाती विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, तो कंपनी को उस साल बिजनेस कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। यू नो वेरी वेल, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के फॉर्मेशन स्टेप्स आपने पढ़े होंगे, तो उस पर आप लोग ज़्यादातर ध्यान रखा होगा आपने कि प्राइवेट कंपनीज़ को इनकॉर्पोरेशन की डेट को ही उनको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, उन्हें मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया पूरा नहीं करना पड़ता। बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी अगर पब्लिक को शेयर इशू करती है थ्रू द IPOs तो उसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा करना पड़ता है। सो IPOs के लिए पहली बात ये है कि जो भी प्रॉस्पेक्टस कंपनी इशू कर रही है फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन प्राइमरी मार्केट में, तो पहली बात ये है कि कंपनीज एक्ट और सेबी की गाइडलाइन को फुलफ़िल करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि वो इशू कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाहिए। नंबर थर्ड, कि अगर कंपनी अपने अंडर सब्सक्रिप्शन क्लॉज से बचना चाहती है, यानी कि ऐसा ना हो कि उसके 90% शेयर सब्सक्राइब ना हो पाए, लोग ना खरीदें, तो उसके लिए वो अंडरराइटर्स को यूज़ कर सकती है। अंडरराइटर्स मींस मीडिएटर्स। जो अंडरराइटर्स में क्या होता है, कंपनीज डायरेक्टली वो शेयर पब्लिक को इशू नहीं करती, फर्स्टली वो शेयर इशू करती हैं अंडरराइटर्स को, अंडरराइटर्स देयर आफ्टर शेयर को पब्लिक को इशू करता है। जनरली अंडरराइटर्स के साथ ये शर्त ये होती है, कंडीशन ये होती है कि अगर सारे शेयर्स अगर कंपनी के विद इन स्टिपुलेटेड टाइम अंडरराइटर्स नहीं सेल करा पाता
तो बाकी जितने शेयर जो अनसोल्ड हैं उसे अंडरराइटर्स को परचेस करना पड़ता है, और ये सारी एक्टिविटीज़ को अंडरराइटर्स को अंडरराइटिंग कमीशन प्रोवाइड करता है. सो दिस द होल प्रोसेस कॉल्ड अंडरराइटिंग ऑफ शेयर. जो बंदा अंडरराइट कर रहा है, जो कंपनीज कर रही हैं, इंस्टीट्यूशन कर रहा है, उसे अंडरराइटर्स, और इसके लिए जो भी उनको रेम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाता है विच इज़ नोन एज अंडरराइटिंग कमीशन. So this is the first method of flotation of new issue in primary market, that is the IPOs, which is known as initial public offer. Now we will move to the second part, that is offer for sale. It is very easy concept. Offer for sale यानी sale के लिए offer देना. Under this method, security is not issued directly to the public, but are offered for sale through intermediaries like issuing houses and stock brokers. It means इसमें कंपनी क्या करती है, पब्लिक को डायरेक्टली सिक्योरिटी इशू नहीं करती, बल्कि मीडिएटर्स को, इंटरमीडियरीज को ये ऑफर करती है सेल के लिए, लाइक इशूइंग हाउसेस एंड स्टॉक ब्रोकर्स को, कि वे आएँ और हमारे शेयर को इशू परचेस करें. फॉर दिस द कंपनी सेल द सिक्योरिटी इन ब्लॉक टू ब्रोकर टू एट एन एग्रीड प्राइस, हु देन रीसेल देम टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक. यानी इसमें क्या होता है, पहले कंपनी ऑफर करती है कि इफ़ यू वांट टू परचेज द शेयर देन आई वांट टू एग्री टू सेल सच शेयर एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. एक प्राइस डिसाइड किया जाता है, उस प्राइस पे ब्रोकर उस प्रोडक्ट को उस शेयर्स को खरीदते हैं, और फिर फर्दरली अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द शेयर, यू नो वेरी वेल, स्टॉक मार्केट में जो शेयर के प्राइस डिसाइड होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होते हैं. सो ऑफर फॉर सेल एक तरह का तरीका है जिसमें हम होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर की बात करते हैं, क्योंकि पब्लिक एक बहुत बड़ा सैम्पल साइज़ है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है, तो सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना पॉसिबल नहीं होता, और सब लोग आपके शेयर्स को ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं होते. तो कंपनी इंटरमीडिएट्स को शेयर सेल करती है, सेल के लिए ऑफ़र देती है कि आइए मेरे शेयर को ख़रीदिए, और फिर उसके इंटरमीडिएट्स को बेच दीजिए. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूँ कि ये कंपनी है और ये कंपनी चाहती है कि उसका शेयर सेल हो पब्लिक में, लेकिन यू नो वेरी वेल पब्लिक का साइज़ बहुत बड़ा है, पब्लिक को एडवर्टाइज़ करना, पब्लिक तक इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना, अपनी चीज़ों को पहुंचाना इतना इजी नहीं होता. तो कंपनी क्या करती है, ऑफ़र फॉर सेल देती है मीडिएटर्स को. मीडिएटर्स क्या करते हैं, एक एग्री प्राइस पे शेयर को परचेस कर लेते हैं, एंड देयर आफ्टर दे विल सेल द शेयर फर्दरली टू द पब्लिक. तो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज़ कंपनी के शेयर्स के दाम डिसाइड हुए 90 रुपीज़ के, यानी इंटरमीडिएट्स ने कहा कि हम 90 रुपीज़ के जो शेयर्स हैं वो मैं आपसे लूँगा और उसको फर्दरली 100 रुपीज़ में बेच देना, तो 1 शेयर पे उस पर 10 रुपीज़ का मार्जिन बन रहा है. सो दिस इज़ नोन एज द प्रॉफिट ऑन द ऑफर फॉर सेल. ओके, नेक्स्ट इज़ अ प्राइवेट प्लेसमेंट. It is a very popular concept. What is private placement? Private placement is the allotment of security by a company to institutional investor and some selected individual. It is considered beneficial because it helps to raise fund more quickly than a public issue. Number second, the cost of flotation, which is quite expensive in the other alternative, is saved. अब देखिए प्राइमरी मार्केट में शेयर, अगर सपोज अगर आपको अपने शेयर्स को फर्स्ट टाइम मार्केट में इशू करना है, तो यू नो वेरी वेल कि आपके पास 2 ऑप्शन है, एक IPOs कर ला लो, ठीक है, अंडरराइटर्स की हेल्प ले लो, या ऑफर फॉर सेल दे दो, इंटरमीडिएट्स को सेल कर दो, इंटरमीडिएट्स को ऑफर दो कि वो उनके प्रोडक्ट को फर्दरली पब्लिक को सेल करें. तो ये सारी चीज़ें हो गई. प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, कंपनीज क्या होती है, सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स को, किसी सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को अपने शेयर को सेल कर देती है. सपोज़ कंपनी को फंड रेजिंग की ज़रूरत है 1 करोड़ रुपए की, तो यू नो वेरी वेल 1 करोड़ रुपए अगर हम पार्शली सबसे अरेंज करने बैठेंगे तो इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग एज वेल एज़ वेरी लेंथी प्रोसेस. सो इन दिस सिचुएशन कंपनी क्या करती है, सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो जनरली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, शेयर्स को ख़रीद लेते हैं. यानी प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब सिर्फ इतना समझ लीजिए, प्राइवेट प्लेसमेंट यानी यहाँ पे हम पब्लिक को ऑफ़र नहीं करते इस शेयर को, बल्कि सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को या किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऑफ़र करते हैं कि वो हमारी सिक्योरिटी को परचेस कर लें, ख़रीदते हैं, और इससे क्या होता है, बहुत जल्दी पैसा अरेंज हो जाता है
और फ्लोटेशन कॉस्ट, यू नो वेरी वेल व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज़। जो को इशू करने में तमाम तरीके के खर्चे होते हैं, फ्लोटी लाइक एडवर्टाइजमेंट, लाइक अ प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, लाइक अ अंडर राइटिंग कमीशन। तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी हद तक एक हमें सेविंग प्रोवाइड करती हैं और कहीं ना कहीं हमें सारी एक्टिविटी को करने के लिए ईजी पड़ती हैं। सो हमने क्या पढ़ा IPOs में कि हम डायरेक्टली पब्लिक को इशू करते हैं या तो अंडरराइटर्स की हेल्प लेकर पैसा अरेंज कर लेते हैं शेयर इशू करके। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा द ऑफर फॉर सेल, यहाँ हम लोग क्या करते हैं इंटरमीडियरीज को लाइक हाउस इशूइंग हाउसेस को या स्टॉक ब्रोकर्स को इनवाइट करते हैं कि वो उनके शेयर को मार्केट पब्लिक में जाके सेल करें, यानी कंपनी का टेंशन नहीं है, उनका टेंशन है। और तीसरा प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी पब्लिक को शेयर इशू ना करके बल्कि सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स को, सेलेक्टेड इंडिविजुअल को शेयर इशू कर देना। नेक्स्ट वन इज अ राइट इशू। राइट इशू इज वेरी right issue, it is a very privilege given to the existing shareholders to subscribe to a new issue of share according to them. According to terms and condition of the company, the shareholder are offered the right to buy new share in proportion to the number of share they already possess. Suppose अगर आप किसी कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, ओके, आपके पास ऑलरेडी किसी कंपनी का शेयर है और कंपनी क्या कर रही है, न्यू शेयर मार्केट में इशू कर रही है। तो मार्केट में इशू करने से पहले ये आपका राइट है कि पहले आपसे पूछा जाए कि क्या आप इस शेयर को ख़रीदना चाहते हैं। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपको वो शेयर इशू कर दिया जाएगा। इफ़ you are not interested to buy such kind of security, so thereafter it will be issued to the public. So it is a very important issue related to the primary market because it is a preemptive right of existing shareholder, यानी जो किसी कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनका एक राइट बनता है राइट इशू का। राइट इशू मीन्स कि सपोज कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, कंपनी के पास टोटल 20,000 शेयर होल्डर 20,000 शेयर्स हैं, जिसमें से ऑलरेडी उसने 10,000 शेयर इशू किया हुआ है। 10,000 इशू वो फिर से करना चाह रहा है और आपके पास 10,000 शेयर है। तो कंपनी जब ये पहले 10,000 शेयर पब्लिक में इशू करेगी, उससे पहले ये आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इस 10,000 शेयर को परचेस करना चाहते हैं। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो जितना भी परचेस करना चाहते हैं आप ख़रीद लें। बाकी शेयर्स को क्या करेंगे, यहाँ पे आपका प्री इम्पिटेटिव राइट 100% का है, क्योंकि कंपनी ने 20,000 शेयर उसके पास टोटल हैं और उसमें से 10,000 शेयर आपके पास अलॉटेड हैं। सपोज़ हम थोड़ा सा और डीप कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, थोड़ा सा और इजी करते हैं। सपोज़ कंपनी के पास 10,000 शेयर हैं, जिसमें से उसने 8,000 शेयर ऑलरेडी इशू कर दिए हैं और 2,000 शेयर अभी वो इशू करने का प्लान कर रहा है। और 8,000 में से आपके पास है 5,000 शेयर, सपोज 4,000 शेयर, और 4,000 शेयर किसी और के पास है। तो जब ये कंपनी 2,000 शेयर एडिशनली मार्केट में इशू करेगी, फिर से वो मार्केट में 2,000 शेयर इशू करेगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगी, क्योंकि आपका प्री इम्पिटेटिव राइट बनता है 50% का, क्योंकि ऑलरेडी जो आपके पास शेयर हैं उसमें से आपके पास 50% का इम्पिटेटिव राइट्स हैं। इम्पिटेटिव राइट्स मतलब जो शेयर ऑलरेडी पहले से इशू है उसमें से आपने कितना शेयर परचेस किया है। पहले 8,000 शेयर इशू हुआ है, उसमें से 4,000 आपने लिया है, 4,000 किसी और ने लिया है, तो दोनों का प्री इम्पिटेटिव राइट्स कितना बनता है 50% का। यानी अगर कंपनी फर्दरली कोई भी शेयर इशू करती है मार्केट में, तो उस शेयर में से 50% आपका हक बनेगा कि आपसे पहले पूछा जाए कि आप उस शेयर को खरीदना चाहते हैं कि नहीं खरीदना। यानी इस 2,000 में से आपसे पहले पूछा जाएगा कि 1,000 शेयर आपको ऑफ़र किया जाएगा। 1,000 शेयर आपके पार्टनर्स को इशू ऑफ़र किया जाएगा। अगर आप दोनों परचेस करने के लिए एग्री हो गए तो ये शेयर आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अगर आप शेयर नहीं लेना चाहते हैं, देयर आफ्टर ये क्या होगा, पब्लिक में इशू होगा। तो ये एक राइट इशू वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी न्यू शेयर को प्राइमरी मार्केट में इशू करने से पहले। जनरली ये सिचुएशन तभी आती है जब कोई कंपनी ऑलरेडी बिजनेस कर रही हो, यानी एग्जिस्टिंग कंपनी, क्योंकि राइट इशू तभी होगा जब कोई कंपनी पुरानी होगी, एग्जिस्टिंग होगी,
लेकिन अगर कोई कंपनी न्यू है तो वहाँ पे राइट इशू का कोई लफड़ा ही नहीं होगा, वहाँ कोई राइट इशू का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों नहीं उठता? बिकॉज ऑफ वहाँ पहले से कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं होते। सो ये कुछ चीज़ें आप अपने दिमाग में रखिएगा कि राइट इशू, it is a privilege given to the existing shareholder to subscribe to a new issue of share according to the terms and condition of the company. The shareholder are offered to right to buy new share in proportion to the number of share they already possess. This right is called a pre-emptive right of the existing shareholder. The next one is, fifth one is EIPOs. EIPOs is the modernization of initial public offer. You know very well, IPOs थोड़ा modernize किया गया उसको. EIPOs means initial electronic initial public offer. When the public issue is made through an online system of stock exchange, it is known as EIPOs. You know very well, IPOs में क्या होता था? कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करती थी, पब्लिक में न्यूज़पेपर के थ्रू एंड मैगजीन के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करती थी। जो उस न्यूज़पेपर को पढ़ता था या फिर मैगजीन को रीड करता था, फिर वो अगर उसके मन में है कि वो उस कंपनी के शेयर परचेस करना चाहता है तो फिर कंपनी के शेयर परचेस करने के लिए अप्लाई करता था। बट अगर ये सारा प्रोसेस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ऑनलाइन वे में किया जाए, यानी आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया जाए वो ना तो न्यूज़पेपर में आएगा, ना तो एडवर्टाइजमेंट में आएगा, ना तो किसी मैगजीन में आएगा, वो उनका एक साइट्स होगा, कंपनी के साइट्स पे इंफॉर्मेशन इनेबल कर दी जाएगी, आपको प्रोवाइड की जाएगी कि कंपनी इतना शेयर मार्केट में इशू करना चाहती है, इशू कर रही है। इफ़ यू वांट टू परचेस बाय द सच काइंड ऑफ सिक्योरिटी देन अप्लाई फॉर द सिक्योरिटीज़। सो EIPOs इज़ अ मॉडर्नाइजेशन ऑफ IPOs, क्योंकि पब्लिक का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, एडवर्टाइजमेंट बड़े लेवल पे करना और लोगों तक इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए कंपनी ने एक प्लेटफॉर्म जनरेट कर दिया स्टॉक एक्सचेंज ने कि जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक वे में आकर कंपनी के शेयर्स को परचेस कर सकते हैं। So the company doing so has to enter into an agreement with the stock exchange and has to appoint a SEBI registered broker to accept application and place order with the companies. इसमें होता क्या है कि अगर आपको किसी न्यू शेयर्स को, किसी कंपनी के न्यू शेयर को परचेस करना है तो आप EIPOs की सहायता लेंगे। इस पूरे प्रोसीजर में अगर आपको किसी शेयर्स को ख़रीदना है तो उसके लिए आपके पास एक रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होने चाहिए और उन्हीं की हेल्प से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ अपॉइंट अ रजिस्टर हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी विद द एक्सचेंज। आपके पास स्टॉक एक्सचेंज के साथ कनेक्ट करने के लिए आपके पास प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। सिक्योरिटी हैव टू बी लिस्टेड ऑन एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज अदर दैन द एक्सचेंज थ्रू विच इट हैज़ ऑफर्ड इट्स सिक्योरिटीज़। द लीड मैनेजर कोऑर्डिनेट विद ऑल द इंटरमीडिएट्स कनेक्टेड विद द इशूज़। यानी अगर कोई शेयर इशू होता है स्टॉक एक्सचेंज में, IPOs में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इस इशूज़ का कम से कम एक इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए। यानी अगर कंपनी IPOs के थ्रू इशू भी कर रही है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। यानी इस पूरे चीज़ों को अगर हम पढ़ें पूरी तरह से, अगर हम डिटेल डिस्क्रिप्शन की बात करें तो प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर न्यू कंपनीज़ फर्स्ट टाइम शेयर को इशू करती है या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या मॉडर्नाइज करने के लिए शेयर्स को इशू करती है ताकि हैवी फंड अरेंज हो सके। पहली बात, जनरली इसमें शेयर, डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर प्रेफरेंशियल एंड वेरियस काइंड ऑफ अदर सिक्योरिटीज़ इशू की जाती हैं। प्राइमरी मार्केट में शेयर को इशू करने के लिए बेसिकली सबसे ईजी तरीका है, जब हम पब्लिक से फंड अरेंज करना चाहते हैं तो IPOs का यूज़ करते हैं, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस या इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये ऑफलाइन होता है, इसमें हम लोग प्रोस्पेक्टस प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एंड देयर आफ्टर पब्लिक क्या करती है, शेयर्स को परचेस करती है। दूसरी बात इसमें ये है कि इसमें हम अंडरराइटर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। नंबर सेकेंड है ऑफर फॉर सेल। इन दिस फ्लोटेशन मेथड कंपनी ऑफर्ड to the intermediaries like the stock brokers and issuing houses to sell the such security to the public। यानी इसमें जनरली डायरेक्टली कंपनी क्या करती है, शेयर को पब्लिक को इशू नहीं करती, पब्लिक को इनवाइट नहीं करती, बल्कि स्टॉक ब्रोकर्स के लिए या इशूइंग हाउसेस के लिए वो शेयर ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक मतलब कि वो शेयर सिर्फ वही लोग परचेस कर पाएंगे एंड देयर आफ्टर वो क्या करेंगे, मार्केट में या पब्लिक को शेयर इशू करेंगे। ठीक है, एक एग्रीड प्राइस पे।
नंबर थर्ड इज़ अ प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, कंपनी पब्लिक में शेयर इशू नहीं करती। इसमें एक सेलेक्टेड पर्सन या सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशन होते हैं जो शेयर को परचेस करते हैं, एंड परचेस करने के बाद वो सारे शेयर्स को परचेस करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये प्राइवेट प्लेसमेंट की कि इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट काफ़ी मिनिमम होता है। सबसे मिनिमम जो फ्लोटेशन कॉस्ट होता है वो प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछेगा, इफ़ क्वेश्चन आस्किंग अबाउट दी फ्लोटेशन कॉस्ट, कि विच टाइप्स ऑफ flotation method in the primary market has lower flotation cost, it is a private placement। क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर हमारे जो सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं, इनको हम लोग शेयर इशू करते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। ठीक है, इसमें जल्द से जल्द पैसा अरेंज हो जाता है। दूसरी चीज़, इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट सबसे मिनिमम होता है। नेक्स्ट इज़ द राइट इशू। यू नो वेरी वेल, प्री-इम्पिटेटिव राइट। एवरी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैव अ प्री-इम्पिटेटिव राइट्स। उनके पास एक पहले से एक इम्पिटेटिव राइट्स होता है कि अगर इफ़ अ कंपनी इशू एडिशनल शेयर इन द पब्लिक in the primary market, to the public in the primary market, so this is a privilege given to the existing shareholder to subscribe a new share according to the terms and condition of the company, and the shareholder are offered the right to buy new share in proportion to the number of share they already possess। यानी उनके पास जितना ऑलरेडी पहले से शेयर परचेस है उसके प्रोपोर्शन में। ये भी बात आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने आपको बताया, आपके पास इम्पिटेटिव राइट्स डिपेंड करता है कि आपके पास पहले से कितने शेयर अवेलेबल हैं। सपोज़ पिछले टाइम 8000 शेयर इशू है, मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था, और आपने उसमें से 4000 शेयर लिया है, आपके पार्टनर ने 4000 शेयर दिया है, दोनों का 50-50% का राइट है। तो अगर नई कंपनी, वही कंपनी 2000 एडिशनल शेयर इशू करती है पब्लिक में, तो 1000 आपको ऑफर किया जाएगा, 1000 आपके पार्टनर को इशू किया जाएगा। और ये IPOs, ये तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है कि एक जो पब्लिक इशू जो है, इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस का एक मॉडर्नाइजेशन फॉर्म है। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हम क्या करते हैं, शेयर को इशू करते हैं। एक ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कराते हैं शेयर्स को, शेयर इशू करते हैं मार्केट में, और उसकी इन्फॉर्मेशन हम अपने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करते हैं। रजिस्टर्ड ब्रोकर्स उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने के बाद जो भी पब्लिक बंदा उस शेयर को परचेस करना चाहता है, वो थ्रू विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वेबसाइट्स के हेल्प से उस शेयर को परचेस कर सकता है। सो वेरी इजी कॉन्सेप्ट। सो दे आर बेसिकली 5 फ्लोटेशन मेथड issued used in new issue of the primary market, that is a IPO, offer for sale, private placement, right issue, and eIPOs. Now we will move to the next topic of this chapter, that is secondary market and stock exchange. Stock exchange or the secondary market, it is a market where we issued the security for the second time। यानी जनरली अगर हम बात करें कि कोई नया शेयर अगर हम मार्केट में इशू कर रहे हैं, या एग्जिस्टिंग कंपनी अपने रिमेनिंग शेयर्स को मार्केट में इशू करती है फर्स्ट टाइम, द न्यू इशू, तो उसे हम लोग पहले प्राइमरी मार्केट में इशू करते हैं। लेकिन जब वही शेयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, पहले से प्राइमरी मार्केट में अवेलेबल है, और उसे ट्रांसफ़र करना होता है टू द सेकेंड होल्डर ऑफ द इन्वेस्टर्स को, सो उस सिचुएशन में हम लोग सेकेंडरी मार्केट को इशू करते हैं। इसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। बस एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूँ इस सेकेंडरी मार्केट में होता क्या है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी इसके बारे में स्टोरी बताई थी कि सपोज़ कंपनी ने 5000 शेयर इशू किया आपको ही, आपने उस 5000 शेयर को परचेस कर लिया, फर्स्ट टाइम इशू किया, तो आपने प्राइमरी मार्केट के थ्रू या प्राइमरी मार्केट की हेल्प से आपने उस शेयर को परचेस कर लिया। ओके, यानी आप पब्लिक में थे, आपको पता चला कि XYZ कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है, आपने 5000 शेयर को परचेस कर लिया। आफ्टर सम टाइम आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको पैसे की नीड बन गई, सो आपने उस शेयर को रीसेल करने की बात की कि यार अब मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? बिकॉज ऑफ आपको इस समय पैसे की ज़रूरत है। सो आप उस पैसे को कन्वर्ट कहाँ करोगे, उस शेयर को कन्वर्ट कहाँ करोगे मनी में? सो उसके लिए एक सेकेंडरी मार्केट प्रोवाइड किया गया। सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे प्राइमरी मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज सेल हुई हैं इन्वेस्टर्स को,
अगर इन्वेस्टर्स उस फाइनेंशियल एसेट्स को कन्वर्ट करना चाहता है इनटू द कैश, तो वो सेकेंडरी मार्केट में जाकर उस शेयर्स को सेल करके कैश जनरेट कर सकता है। तो सेकेंडरी मार्केट क्या है कि दिस मार्केट सिक्योरिटी आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय द कंपनी टू इन्वेस्टर बट इट इज सोल्ड बाय एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टू द अदर इन्वेस्टर्स। यानी कोई बंदा होगा जिसे शेयर्स की ज़रूरत होगी, इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, किसी पास पैसा होगा कि भाई मैं पैसा लगा दूं और आपको पैसे की ज़रूरत है, तो इस टाइम आपने अपने शेयर को सेल किया, किसी दूसरे बंदे ने परचेस कर लिया, आपको मिल गया पैसा और उसका पैसा इन्वेस्ट हो गया। सो बेसिकली यही कहानी है। इसके हम लोग डिटेल डिस्क्रिप्शन पे नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेकेंडरी मार्केट इज़ डैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए स्टॉक एक्सचेंज। आप लोग जनरली न्यूज़ चैनल्स पे और न्यूज़पेपर्स पे आप लोग स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुनते हो। सो आई होप अभी तक हम लोगों ने जो भी प्राइमरी मार्केट है के बारे में डिस्कस किया है एज वेल एज द फ्लोटेशन मेथड यूज्ड इन द प्राइमरी मार्केट, इट विल क्लियर फॉर यू वेरी इजली। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।